अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की चेतावनी। हिमंता ने कहा, घर खाली करो या बुलडोजर का सामना करो। घुसपैठ रोकने के लिए सीएम हिमंता की बड़ी तैयारी। आधार कार्ड जारी करने के लिए नियम होंगे और सख्त। सीएम हिमंता ने कांग्रेस पर लगाया घुसपैठियों को बताकर भूमि अतिक्रमण करने का आरोप। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों से निपटने के लिए अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ी तैयारी कर ली है। सीएम हिमंता ने एक बार फिर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को चेतावनी दे दी है। सीएम हिमंता ने यह कहा कि घर खाली करो या फिर बुलडोजर का सामना करो। तो ये बड़ा बयान है हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार का। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लखीमपुर में 400 से 500 जो संदिग्ध बांग्लादेशी मूल के लोग रह रहे हैं, उन्हें 4 दिन का अल्टीमेटम देता हूं, या तो वो घर खाली कर दें या फिर बुलडोजर एक्शन का सामना करें। ये साफ और स्पष्ट शब्दों में सीएम हिमंता के जरिए चेतावनी एक तरीके से इन घुसपैठियों को दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए आधार कार्ड जारी करने के नियमों को और सख्त बनाने का फैसला कर लिया है। लेकिन इसी के साथ सीएम हिमंता ने कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने अवैध अप्रवासी वोट बैंक को खुश करने के लिए स्वदेशी लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज किया, जिसके कारण 922 भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया। ये तमाम आरोप उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर बाकायदा एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लगाए हैं। लेकिन सबसे पहले सुनिए कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम हिमंता ने घुसपैठियों को लेकर क्या कहा है और किस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर यहां पर बस जाते हैं, लेकिन आधार कार्ड जारी करने की जो प्रक्रिया है उसमें और ज्यादा सख्त नियम हो। पूरी तरीके से पहले सत्यापन किया जाए, उसके बाद ही आधार कार्ड जारी किया जाए और कैबिनेट जल्द ही इस बारे में फैसला लेगी, ये भी उनके जरिए कहा गया है। सुनिए कि सीएम हिमंता ने घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ तैयारी की है। किंतु এনেকুৱাও নহয় যে পুলিচে সকলোকে ধৰিব পাৰিছে। আজি এটা কেবিনেটত আমি আলোচনা কৰিছিলো যে আধাৰ অসমত বহু বছৰ হৈ গল, প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহে এতিয়া আধাৰ লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই, কাৰণ তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আধাৰ দিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া আধাৰ দিব লাগে খালি শিশুক, নতুনকৈ জন্ম হোৱা। গতিকে আমি এতিয়া অসমত এটা নিয়ম আনিম, অহা কেবিনেটত এই বিষয়ে আৰু আলোচনা হ'ব অলপ ভাল কৰি, যে প্ৰাপ্তবয়স্কই আধাৰ বিচাৰিলে অকল জিলা উপায়ুক্তহে তাক দিব পাৰিব, আন কোনেও প্ৰাপ্তবয়স্কক আধাৰ দিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ ফলত বাংলাদেশৰ পৰা অহা ফ্ৰেছ মানুহে আধাৰ কাৰ্ড ল'ব নোৱাৰিব। আৰু একেবাৰে আমি ৰাস্তাটোও বন্ধ কৰা নাই। কোনোবা যদি জেনুইন মানুহ আছে, বিশেষকৈ চাহ বাগিচা অঞ্চলত কিছু জেনুইন মানুহ এতিয়াও আধাৰ পোৱা নাই, তেওঁলোকক জিলা উপায়ুক্তজনে দিব পাৰিব। তাৰমানে আগতে আধাৰ কেন্দ্ৰতে পাই যায় বা এছডিচি অফিচত পায়, এতিয়া ডিচিজনে নিজে নোচোৱালৈকে আধাৰ পোৱা ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ যাব। এইটো এটা অসমত আমি নতুন বিদেশী মানুহে যাতে আধাৰ নাপায় তাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ব্যৱস্থা হ'ব, এটা ডিটাৰেণ্ট হ'ব। আৰু আজিকালি আধাৰ ল'বৰ কাৰণে বা এইবাৰ ভোটাৰ লিষ্টতো নাম সোমাবৰ কাৰণে জন্ম মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব লাহে লাহে। সেইকাৰণে আমি জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া ব্যৱস্থাকো অলপ টাইট কৰিব খুজিছো। বহুদিন আগতে জন্ম লোৱা মানুহেও যে আজি মোৰ বয়স 16 বছৰ আগত ডেট এটা দি মই বেক ডেটত জন্ম পত্ৰ লওঁ। বেক ডেট মানে ইলিগেলি নহয়, লিগেলিয়ে লওঁ। মই লিখিয়ে দিওঁ যে মোৰ 1980 চনত জন্ম হৈছিল, তেতিয়া মই
জনমৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ল'ব নোৱাৰিলো, এতিয়া মোক জনমৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়ক। তেনেকুৱা কেছবিলাকো ডিচিৰ ওচৰলৈকে যাম। এটা নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ নহয়, কিন্তু আধাৰখন দেখুৱালেতো ৰেলৰ টিকটো পায়, ভোটাৰ লিষ্টতো নাম পায়। এক্টৰ লিখা আৰু বাস্তৱৰ কথাটো বেলেগ। আধাৰখন দেখুৱালেতো আপুনি দিল্লী, মুম্বাই, কলিকতা সকলোতে গৈ আপুনি ভোটাৰ লিষ্টতো নাম সোমাব পাৰে। এতিয়া আমাৰ অসমত, ভাৰতত গেছৰ চিলিণ্ডাৰ ল'বও আধাৰ লাগে, বেংক একাউণ্ট খুলিব আধাৰ লাগে। গতিকে আধাৰখন হৈ গ'লে বাকী কামখিনি ইজি হৈ যায়। আধাৰখনক ব্লক কৰি দিলে বাকী একো কাম নহয়। আধাৰখনটো দেশৰ নাগৰিক নহলেও পাব পাৰে, যদিহে বৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰে। যে মই পাছপোৰ্ট ভিছা দেখুৱালে 3 মাহতকৈ বেছি থাকিলে আধাৰখন মই ল'ব পাৰো, কিন্তু অবৈধ প্ৰৱেশ কৰিলে নোৱাৰো। গতিকে আমাৰ সমস্যাটো বৈধ প্ৰৱেশক লৈ নহয়, আমাৰ সমস্যাটো হল অবৈধ প্ৰৱেশক লৈ। গতিকে আমি যদি 18 বছৰৰ ওপৰৰ মানুহক যদি আধাৰ বন্ধ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আৰু অসমত কোনেও সোমাই ভোটাৰ তালিকাত নাম অমুক এইবিলাক কৰিব নোৱাৰে। যোৱাকালিও ৰাতি আমি 20 জন বাংলাদেশীক পুছবেক কৰিছো। গতিকে যিটো গতিত আমি বাংলাদেশীক পুছবেক কৰি আছো, সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়। तो आपने असम के मुख्यमंत्री को सुना, जिन्होंने बताया कि घुसपैठियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के हमारे जो प्रयास है वो निरंतर जारी है। और कल रात भी हमने 20 और बांग्लादेशियों को निर्वासित किया है, ये जानकारी भी उनके जरिए दी गई। यानी कुल मिलाकर असम देश का एक ऐसा राज्य है जहां बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है और लगातार घुसपैठ की खबरें आती रहती हैं। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसे लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं जिससे कि इन घुसपैठियों पर शिकंजा कसा जाए, इन्हें वापस इनके देश भेजा जाए या फिर इनकी पहचान हो। आखिर किस तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं, इनके जरिए क्या है यहाँ पर रहने के लिए, उन तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है, चर्चा हो रही है, फैसला लिया जा रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अब एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस की सरकार जब असम में थी उस पर हमला बोला और ये लिखा कि कांग्रेस सरकार ने अपने अवैध अप्रवासी वोट बैंक को खुश करने के लिए स्वदेशी लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज किया, जिसके कारण 17 भूमि पर अतिक्रमण किया गया। प्रमुख केंद्रों में हजारों बीघा 17 भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, ये उनकी तरफ से लिखा गया है। बाकायदा इस पोस्ट में ये जानकारी भी सीएम हिमंता के जरिए दी गई है कि कहां पर कितना बीघा जमीन है जो कि अवैध अप्रवासियों के तुष्टीकरण के कारण कहीं न कहीं राज्य की इस तरीके से छीन गई, उस पर अतिक्रमण हो गया, जिसमें उन्होंने 13,000 बीघा जो भूमि है, वैष्णव मठ की ये भूमि थी, उस पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। उन्होंने इन वैष्णव मठों के लिए भूमि दोबारा प्राप्त करने के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, इस बात की पुष्टि भी उन्होंने की। और सीएम हिमंता ने कहा कि प्रमुख केंद्रों में हजारों बीघा 17 भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। इसमें बारपेटा में 7,137 बीघा जमीन है, नागांव में 2,583 बीघा जमीन है, बाजाली में 2,756 बीघा जमीन है और लखीमपुर में 896 बीघा लगभग जमीन शामिल है, जिस पर अतिक्रमण कांग्रेस की सरकार में किया गया। लेकिन अब सीएम हिमंता ने ये साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम इस मिशन पर जुट चुके हैं और इस भूमि को पुनः प्राप्त करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन घुसपैठियों पर किस तरीके से शिकंजा कसा जाए, किस तरीके से घुसपैठ को रोका जाए और जो घुसपैठिए रह रहे हैं उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजा जाए, इसको लेकर जो है जो भी संभव प्रयास हो सकते हैं वो उनकी सरकार कर रही है। और अब ये लास्ट अल्टीमेटम जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन घुसपैठियों को दे दिया है कि जहां भी वो राज्य में रह रहे हैं या तो वो अपने घर खाली कर दें या फिर उनके घर पर बुलडोजर चलेगा, इसके लिए वो तैयार रहें। तो इस तरीके की चेतावनी है, इसका असर क्या होगा, कांग्रेस पार्टी की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।